Everyone. Good evening. A wonderful, wonderful evening. Hope your day was lovely, hmm? Full of happiness, smiles. How was it? Hmm? Was Okay. Okay, no one wants to share. It's okay. Did the practice? Yes. Yeah. Okay, very nice. And anyone wants to share about the practice? Shweta, I was just thinking, after our session ended, I was just thinking, if you feel there was nothing to learn from the mistake, then probably it was not a mistake. Okay? मैंने You चेंज कर दिया मिस्टेक कभी. That's what I said. It was probably not a mistake. Yeah. If since I've already learned, I've already realized, okay, that this is a better of choice that I did, or one was what that came to my mind was, or maybe somewhere you are happier in this choice of yours. That's why you don't want to think about that. Okay, or that's why you don't want to, mm, think a little more on that. Probably that is why you did not find any learning from that. Yeah, or maybe it was because it was related to a professional thing, maybe not very personal. So Hmm. that is why professionally you just move on. There are a couple of things, so that could be the reason, because it didn't impact the personal thing. However, still I feel if I go in the past, probably that Hmm. could have been the best thing as a profession I could have Hmm. achieved. Oh, very good. Then you know what could the learning be? That sometimes you should follow your instinct. Yeah, Yes. that could be the learning. We are always, careful, thinking, ye kya hoga? Maybe we overthink too much. Remember in the Secret movie, there was this scene. This girl was looking for a partner, and she was playing ball. She was not playing. She was just sitting at the beach, and some guys were playing. Some people were playing volleyball, I guess, or something they were playing on the beach, and one of them calls to her. She was wondering, should I go, should I not go? Then she went. Okay, so probably that is what, like, sometimes we should be following our instinct. So that could be again this something that struck me. Now you have to see how it is happening with you. No, to be honest, yes. I mean, that's the thing, because every time when a professional thing comes, you do a very calculated thing. Pata nahi ye wo. Ultimately, I don't know what right or wrong. It all depends how what you have been destined for. Yes, So see. I've changed my this thing. So probably Who's the writer of this Three Idiots movie? Not the Three Idiots movie. That one, 5 Point someone. Who was the writer? I just Chetan forgot. Bhagat. Chetan Chetan Bhagat. Bhagat. He took a decision, na? He left his job and started writing. Had he not followed that instinct, he wouldn't have been so popular. He would have been somewhere else. बहुत अच्छा job होगा, बहुत pay हो रही होगी. But look at him now. He definitely followed his instinct also, right? So could be that sometimes you should be following your instinct. So that could be one learning. Yeah. Okay. But I could write the other thing, which I used to feel sometimes back in me, ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए. So I could write 10 things that I have learned for, which was, so whenever I'll feel little Hmm. guilt. Guilt is a wrong word, maybe, Below the line. Below the below line. the line. Hmm. So that maybe I feel differently about the situations, then I can just read through those things. That I think that's a good enough for me Hmm. to be in a situation कि ठीक है, it's okay. That time what I felt was right. I took the decision. Okay, very good. Thank you. Thank you. And I'm happy that you did the practice and you thought of something else to write about. Yeah. So thank you. I'm happy to see Kavita ji, her favorite chapter, I guess. Yeah. Yes. Hi. So anyone else wants to share how was the practice? How you felt after the practice? Neetu ji, I'll just mute you. Hmm. Yeah. No one? ओके. इसका मतलब वही होता है, इफ़ यू डोंट आस्क मीन्स या तो आपने प्रैक्टिस की नहीं है, और नहीं की है तो प्लीज़ कर लीजिएगा. ठीक है, आज नहीं करी है कोई बात नहीं, कल कर लीजिएगा, जब याद आए कर लीजिएगा, बिकॉज जितना ज़्यादा आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. नॉट फॉर मी, नॉट फॉर एनी वन एल्स, ओनली फॉर यू, नॉट फॉर योर फैमिली, ओनली फॉर यू. ओके. I just finished my practice. It was like long day, so I had time नहीं मिला. अभी complete किया है. नो प्रॉब्लम. ठीक है. So what we'll do is we'll start and then we'll start the wonderful chapter. Today's chapter
इज अगेन आपको भी लग रहा होगा ना कि सब अच्छे हैं, बट एक्चुअल में ही सब अच्छे हैं. वील रीड द चैप्टर एंड देन आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस. मैंने पहले भी शेयर किया है, बट एक्चुअल में ही ऐसा हुआ ये वाला चैप्टर करने के बाद मेरे संग में. ठीक है, सो लेट्स अनम्यूट आवरसेल्व्स एंड स्विच ऑन द कैमरास एंड डू 10 लिटिल फिंगर्स. बस 2 दिन और करना है आपको 10 लिटिल फिंगर्स, बस मेरे संग. आप अपना करना, आप अपना कर लीजिएगा. 1 2 3 स्टार्ट. 10 10 little fingers, 10 close, little toes, 2 little fingers toes, and 1 little nose, 10 10 little little fingers, fingers, 10 little 10 fingers, fingers, 2 2 little fingers little and 1 little little nose. nose. Wonderful. I like the जोश. Yes. ऐसा लग रहा है कि हाँ अब खत्म होने वाला है, अच्छे से कर लेते हैं 10 little fingers. Yeah. So who wants to read this wonderful chapter? I wanna read today. Okay. Just 1 second. Yes, just 1 minute. Yeah, wait a minute. Yeah, please start. Day 27, The Magic Mirror. Surbi, there is a lot of, I think, a fan noise. Some fan noise, I guess. Huh. Now it's audible. Now I am clearly audible. Yes, it's perfectly fine. Thank you. Yeah. So day 27, The Magic Mirror. Acha, before we switch to the Hindi version, which is the first memory of a mirror in your life? Anyone has thought of it? Snow White की Sorry? Snow White की stepmom. Yes, Snow White, yes. Mirror, mirror on the wall, yes. And anyone else? Alice in the Wonderland में भी था ना mirror? I remember Snow White more. Alice में नहीं था. Okay, ठीक है. Okay, very good. Snow White है, ठीक है. सबको याद है Snow White. और उसके संग हमेशा सबका एक नेगेटिव कॉनोटेशन रहता है ना? क्योंकि वो जो भी देख रहा होता है वो सच बोल रहा है, ओके, बट उसके मन का नहीं बोल रहा है ना. जो क्वीन रहती है उसके मन का नहीं बोल रहा होता है. सो लेट्स सी व्हाट आवर मिरर टेल्स अस और व्हाट आवर रिलेशनशिप विद द मिरर इज. या सो हियर वी सी इन दिस पिक्चर, सॉरी ये गर्ल्स का ही रूम है, ठीक है. या गाइस का होगा तो उसके शूज़ ऐसे डिस्प्ले में नहीं होंगे, अंदर में कहीं पे होंगे. या दे आर हाई हील्स ऑन दिस यूनिट. अ टेबल लैम्प, चेयर के ऊपर में एक बैग रखा हुआ है. एंड व्हेन वी आर लुकिंग एट द मिरर इट्स लाइक एज इफ इट्स लिट अप. ये मिरर लिट अप है या उस पर आपका जो रिफ्लेक्शन है वो इतना शानदार है, इतना शाइनी है. ये क्या है? एंड इट इज़ ऑल इट इज़ फुल ऑफ दिस मैजिक डस्ट. तो ये क्या है? इज इट दैट योर रिफ्लेक्शन विच इज शाइनिंग सो मच और द मिरर इज मेकिंग इट शाइन सो मच? व्हाट इज दिस? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट Rhonda Byrne is telling us. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, सबका रिलेशनशिप कैसा है मिरर से? आप कितने बार अपने आप को मिरर में देखते हो? क्या देखते हो व्हेन यू आर लुकिंग इन द मिरर? I too don't see, just once in the morning I'm getting ready. That's it. वो भी जल्दी जल्दी बस एक बार कर लिया, जो सुबह वो रात तक ऐसे ही रहता है. Okay, and you brush your teeth? You look in the mirror and brush your teeth, or are you brushing and roaming around in the house? No. Look in the mirror and do it. Okay, so when you're looking, what are you thinking? What are your thoughts? अभी gratitude चल रहा होगा maybe. पहले it was kind of always in a haste. अभी दिमाग इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, कभी जल्दी कभी यही सब चलता है. But now at least, because one of the person told me that when that mirror exercise, when you look into the mirror, say I love you, I like you, the self love kind of thing. मैं मेरी favorite हूँ types वाला. So अभी it's that kind of conversation. Earlier it was more kind of काम जल्दी brush करो, this is one of the thing that needs to finish, फिर ये करना है, फिर वो करना है. So okay. Others? Someone else? I look every time I pass down the mirror. And you say, I'm my favorite. You do this? Now I do this. Before I don't used to do this. Okay. Someone else जिसने कभी कुछ भी जिसको इसके बारे में नहीं पता था, उसका क्या रिलेशन था? Yes, Kavita ji, you want to share? You have a good relation. Now that's why I'm happy to see you. But I was expecting कि आज आप होंगे पक्का. Yes. Actually क्लिनिक में कैसे मेरे कैबिन में ही मेरे सामने बहुत बड़ा सा मिरर है.
बिकॉज आई एम अ ट्रैकोलॉजिस्ट एंड पेशेंट मेरे सामने बैठता है, तो आई एम नॉट सपोज टू लाइक टेल द पेशेंट टू कि अपना सर झुकाओ करके। तो मुझे मिरर में उसका जो भी हेड है, सर्कमफरेंस सारा दिख जाता है। एंड होल डे अगर पेशेंट नहीं है तो आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर ओनली, so always I'm in front of my image only, so I'm always keeping on talking with mirror ओके, वेरी and I गुड. enjoy that. Initially कैसे, जैसे अभी श्वेता जी ने बोला, initially it was really कि फटाफट करो and निकलो, but now I have started observing very minute things in me also, and if somewhere you are feeling like you're getting some age wrinkles or something like, तो वो मिरर में देख के पानी पीते वक्त the things come on कि I'm so beautiful, my skin is so glowing, it's so clear, my hair are so beautiful, my hair are curly, crowning glory, thick, black. And I thank comb also for that. I thank mirror for that. I thank water for that. And जैसे जैसे याद आता है सामने mirror है, तो I go on conversating with myself, praising myself, loving myself and all. And it Okay. sounds so beautiful when you praise yourself, na? And you become more and more prettier. That's Okay. what I have noticed within this 6 months. Wow, very nice, And it's Kavita. really a beautiful practice. Yes. So someone who doesn't know about this practice, उनका क्या connection है या relation है with the mirror? Is it just a passing object? हाँ, या सिर्फ जब आप तैयार होते हो तब देखते हो, और जब आप देखते हो तो आप क्या बोलते हो, या क्या मन में थॉट्स आते हैं? So Priya, what I say is like thoughts तो कोई आते नहीं है, बस इतना हरी कि ये करना है वो करना है, और maybe recently ना I just got scanty hair fall over here after COVID. What happened, my hair start falling crazy. Okay, got it. अच्छा ठीक है, तो I always see that, even in my Zoom meetings also when I do with my clients, sometimes their focus is here only. But nowadays, after this class, I start saying, no, it's going, my hair is growing fine, and this is what I'm doing now. ओके, वेरी गुड. तो मतलब ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड से सबका मिरर के संग का रिलेशन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो गया है. सबका यही व्यू है. Yeah. What do you want to add? Yes, ma'am. I just want to add that whenever I look at the mirror, and I always used to say now, oh, what a beautiful smile I have. Now in this way the conversation starts. ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो आई एम सो हैप्पी कि इस चैप्टर के पहले ही हमने हमारा कनेक्शन, रिलेशन या कनेक्शन विद द पर्सन इन द मिरर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर लिया है. ठीक है. सो लेट्स लर्न व्हाट मोर वी हैव टू डू इन दिस प्रैक्टिस. अच्छा, गाने भी अब किसी को शीशे के बारे में पता है? मेरे को तो यही पता है, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है. एनी अदर सॉन्ग इज ऑल्सो देयर क्या, शीशा वाला? नहीं ना, हिंदी में तो आई डोंट थिंक ज़्यादा कोई है. लेट्स सी. या सो लेट्स स्टार्ट. सुरभि. The appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. Khalil Gibran, 1883 to 1931, poet and artist. या तो अब देखिए, हमसे ये पोएट क्या कह रहे हैं. अपीयरेंस ऑफ थिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इमोशंस. अब हम लोग इसको, अगर हम लोग हमारे वो वाला मुहावरा बोले हैं जिसको हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, क्या है? देखने वाले की आंखों में सुंदरता होती है. दिस इज व्हाट वी हैव बीन हियरिंग, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, राइट? ये हम लोग ने हमेशा से, काफ़ी याद भी नहीं होगा कब से ये सुन रहे हैं. हाँ? तो क्या यही बोल रहे हैं ये पोएट हमसे कि एक्चुअल में तो यही बात है. अगर हम कहें कि ड्राइंग करने में बहुत अच्छा लगता है, ड्राइंग इतनी अच्छी, ड्राइंग कितनी अच्छी है. अगर ड्राइंग अच्छी होती तो सबको ड्राइंग करना अच्छा लगता, सबको आर्ट अच्छा लगता. तो क्या सबको आर्ट अच्छा लगता है एक्चुअल में? सबको क्या ड्रॉ करना, कलरिंग करना अच्छा लगता है? नहीं लगता है. तो ये किस में है? वो मेरे में है. लाइक इट इज़ माई पैशन और माई लव फॉर द आर्ट. It could be cooking for someone, it could be baking for someone, it could be driving, riding, anything. जो एक हॉबी है वो क्यों अच्छी लगती किसी को? क्योंकि उस पर्सन के अंदर उसके लिए वो लव है ना. हम इसको ऐसे बोल सकते हैं. अब वो कह रहे हैं अपीयरेंस ऑफ थिंग्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इमोशंस. तो अब ये जो इमोशंस हैं, ये तो एक पर्सन के अंदर ही बहुत सारे इमोशंस होते हैं. या आप हॉलीडे पे गए हो, या ब्यूटीफुल वैली, कश्मीरी सपोज आप गए हैं, बहुत सुंदर है, रेन स्नोफॉल हो रही है, इट्स वेरी प्रिटी, यू आर विद योर फैमिली, एवरीथिंग. आपको बहुत सुंदर लग रहा है. द डे यू रीच, यू आर जस्ट इन लव विद एवरीथिंग. बट नेक्स्ट डे आपका कोई हेल्थ ब्रेक डाउन हो जाता है. मे बी यू हैव अ हेडेक, और मे बी यू ओवर एट एंड यू गॉट अ टमी अपसेट. आपको क्या वो सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी? सेम चीज़ है. जो कल इतनी अच्छी लग रही थी, आज आपको कैसी लगेगी?
आपको लगेगा नहीं मेरे को तो रूम से ही बाहर नहीं निकलना है, आप बस लेटे रहोगे, आप बोलोगे नहीं मुझे तो पतली खिचड़ी खानी है, या वट एवर जो भी आपका रहेगा सिस्टम वही रहेगा। इफ़ यू हैव अ हेड ब्रेक डाउन, आपको लगेगा नहीं बस एक कोई बोलो मत, कुछ मत करो, एक मेडिसिन खाएंगे एंड यू जस्ट वांट टू गो ऑफ टू स्लीप। तो ये क्या हो रहा है, सब कुछ सेम है बट क्या चेंज हो गया, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस चेंज हो गए। हाँ, तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है। वी सी मैजिक एंड ब्यूटी इन देम डिपेंडिंग ऑन द इमोशंस। सेम रेनफॉल है, आज कलकत्ता में बहुत बहुत अच्छी बारिश हो रही, माने लाइक इट स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, आई थिंक 2:33 से स्टार्ट हो गई है, पूरे दिन बारिश हुई है। जो घर पे बैठे हैं उनको बहुत अच्छी लग रही है। सेम जन को अगर बाहर निकलना होगा, विल दे लाइक इट? नो, राइट, उनको नहीं अच्छा लगेगा। आपको रॉक म्यूजिक बहुत पसंद है, हैप्पी हो आप, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, जैसे ही कुछ केओस हुआ, आपको हेल्थ ब्रेकडाउन है, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। आपको किसी से फ़ोन पे बात करनी है तो भी वो आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपके इमोशंस के हिसाब से, आपकी फीलिंग्स के हिसाब से सामने वाली चीज़ें जो अभी तक अच्छी थी अब आपको वो नहीं अच्छी लग रही हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में मैजिक एंड ब्यूटी कहाँ है? इट इज़ इन अस। तो वो हमको कहाँ ढूंढना है? अगर ये जो हैप्पी हम लोग होना चाहते हैं, लाइक जिससे भी पूछो ना व्हाट इज़ योर ड्रीम, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। मैक्सिमम लोगों की ड्रीम यही होती है ना, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। तो अब वो हैप्पी कहाँ ढूंढना है हमको? वी हैव टू फाइंड इट इन आवर सेल्व्स। दैट हैप्पीनेस वी हैव टू फाइंड इन आवर सेल्व्स। आज अगर मेरे को कश्मीर जाने का मन है, कल जब हम घूम के आ जाएंगे तो क्या मेरे को हैप्पीनेस परमानेंट हो जाएगी? टेल मी, नहीं होगी। फिर मेरे को मे बी गैंगटॉक जाने का मन होगा, मे बी ऑस्ट्रिया जाने का मन होगा। तो वो मेरी हैप्पीनेस तो शिफ्ट होती जा रही। क्यों? क्योंकि हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। द मोमेंट वी स्टार्ट रियलाइजिंग दिस कि यस हैप्पीनेस इज इन मी, कि यही मेरा कश्मीर है, ठीक है, यही मेरा स्वर्ग है, राइट, हाँ, तब मेरे हम हमेशा हैप्पी रहेंगे। सी आई स्टिल गो टू कश्मीर, ओके छाया जी, वी बोथ आर गोइंग टू कश्मीर, या। तो ये बात है कि आप सामने में हम लोग को नहीं देखना है, वी हैव टू सी दैट वेयर इज दिस मैजिक एंड ब्यूटी। हम हर चीज़ में मैजिक एंड ब्यूटी ढूंढ सकते हैं, राइट। कल तक जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे थे, आज आप उन सब चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, है ना। यू आर ग्रेटफुल फॉर योर फोन, यू आर ग्रेटफुल फॉर वाटर, एवरीथिंग। तो क्या चेंज हो गया? पानी वही सेम है, उसी फिल्टर से आ रहा है, उसी फ्रिज से आप निकाल रहे हो उसको, हाँ, वो कैसे चेंज हो गया? आपके देखने का नज़रिया बदल गया। सो नाउ द ब्यूटी इज एक्चुअली इन योर आइज, यू हैव एक्सेप्टेड इट, दैट ग्रैटिट्यूड इज इन यू, you have accepted it. That is why everything around you is started, appearing better, nicer. You see magic in that. Yeah, please read. You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after another trying to fix them, complaining about situations or other people, and never succeed in living your life to the fullest and realizing all of your dreams. But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes. Just like that, your world magically changes because you changed. So what you are attracting changed too. अभी आप देखिए, हम लोग सब लोग रैट रेस में ही लगे हुए हैं, है ना। अच्छे एग्जाम्स, पहले अगर हम लोग जब छोटे थे अपन, पहले क्या था, मार्क्स अच्छे चाहिए, मार्क्स अच्छे मिल जाएं, कॉलेज में अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, फिर अच्छा जॉब चाहिए, फिर अच्छा स्पाउस चाहिए, फिर अच्छा घर चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, राइट, अच्छी पोस्ट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, फिर बच्चे भी अच्छे चाहिए, बच्चों का स्कूल भी अच्छा चाहिए, उनके भी एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे चाहिए, उनकी भी शादी अच्छी चाहिए, उनके भी जॉब्स अच्छे चाहिए। तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर जस्ट रनिंग अराउंड, वो हैमस्टर की तरह। सेम चीज़ है, अलग अलग हमारे लाइफ में हम लोग सेम चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। पहले अपने एग्जाम्स के मार्क्स, फिर बच्चों के एग्जाम्स के मार्क्स, फिर आई थिंक आजकल तो ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स के भी एग्जाम्स के मार्क्स के बारे में आप लोग प्रे करते हैं क्या? हाँ, आई डोंट नो, बट ये साइकिल तो वही चलता ही चला जा रहा है। वी आर चेजिंग दिस वन प्रॉब्लम आफ्टर अनदर, ट्राइंग टू फिक्स देम। इसके मार्क्स अच्छे आ जाए, इसका एडमिशन अच्छा हो जाए, इसकी तबीयत अच्छी हो जाए, ये पतली हो जाए, ये मोटा हो जाए, व्हाटएवर। हम लोग सेम चीज़ों के पीछे भागते चले जा रहे हैं। कंप्लेन भी सेम चीज़ों के बारे में कर रहे हैं, उसकी टीचर अच्छी नहीं थी, मेरी भी टीचर ऐसी थी, उसका बॉस भी खराब है, मेरा भी बॉस ऐसा था। ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग एंड विदाउट रियलाइजिंग कि एक्चुअल ड्रीम हमारी क्या है, हम लोगों को नहीं पता। ये जो हैप्पीनेस की बात हो रही है, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस आउटसाइड, हाँ, जबकि सब कुछ हमारे अंदर ही है, ठीक है। एंड नाउ शी इज टेलिंग अस व्हेन यू मेक द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड योर वे ऑफ लाइफ, शी इज नॉट टेलिंग अस यू मेक ग्रैटिट्यूड और योर वे ऑफ लाइफ, शी इज टेलिंग व्हेन यू मेक द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड योर वे ऑफ लाइफ। मतलब जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और आपको जो मैजिक दिख रहा है,
यू आर इन लव विद दैट मैजिक, यू आर इन लव विद द रिजल्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप उसको जब अपने लाइफ की जिंदगी बना लेंगे, वे ऑफ लिविंग बना लेंगे, तब आप एक्चुअल में चेंज हो जाएंगे। क्या आपको हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड दिख रहा है और हर चीज़ का रिजल्ट आपको अच्छा लग रहा है, यू विल फील येस, जो भी हम चाह रहे हैं वो मेरे लाइफ में आता चला जा रहा है। ओके, सो एंड योर वर्ल्ड मैजिकली चेंजेस बिकॉज यू चेंज्ड, है ना। आप हर चीज़ में अच्छी चीज़ देख रहे हो तो क्या होगा, आपके लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, राइट। एक बार आपको आई टोल्ड यू ना, लाइक हमने 2 दिन ट्राई किया था कि कुछ सब कुछ पॉजिटिव ही बोलें, हाँ, कुछ काउंटर नहीं करें, और आज 3rd डे वो एकदम नॉर्मल, हमको लगा ही नहीं कि हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक ही हो गया। मतलब अभी हम शाम को ही सोचे थे, वाह आज भी पूरा दिन घर में थे, बिकॉज यू नो बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग आई वॉज वेरी हैप्पी कि घर पे थे हम, एक ही साइड गए शाम को। आई वॉज थिंकिंग घर पे हैं हम, एकदम कूल हैं, कुछ मेरे को मैंने एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ा। कल तक होता था कि नहीं हम अच्छे से ही बात करेंगे, अच्छे से ही बात करेंगे, यू नो, ऐसा होता था। अभी आज एकदम स्मूथ, आई डिड नॉट हैव टू थिंक ऑल्सो कि मेरे को पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है, कुछ नहीं, वो नेचुरली लगा मेरे को। लाइक वाओ, तो अगेन आई विल कंटिन्यू इट टुमारो। पहले तो लगा था 2 दिन मुश्किल से हो पाएंगे मेरे, ऑनेस्टली कह रहे हैं, लाइक यू नो, 2 बोला हमने ऐसे नहीं था, आई थॉट इट इज़ अ चैलेंज फॉर मी, बट एकदम नॉर्मल लगा मेरे को। सो आई विल कैरी इट टुमारो ऑल्सो, और कल एक दूसरे जन को भी उसमें ऐड कर लेंगे। तो ऐसे ही करके जब हम इसको अपना वे ऑफ लाइफ बना लेंगे और हम चेंज होने लगेंगे, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगेगी। आई एम टेलिंग यू, ट्राई इट आउट ऑन 1 पर्सन इन योर लाइफ। एक ही दिन का आप ट्राई करो, ठीक है। जैसे कि हम लोग हफ्ते में 1 दिन व्रत करते हैं, कई जन बोलते हैं डाइटिंग के लिए, कई जन बोल रहे हैं भगवान जी के लिए कर रहे हैं। जैसे 1 दिन व्रत करते हैं तो वी अवॉइड समथिंग ना, हाँ। और जैनी लोग का तो ये सब होता ही है, मौन व्रत भी होता है, कितना कुछ कुछ होता है ना बहुत सारे लोगों का। तो ट्राई इट आउट कि एक दिन आप कोई एक पर्सन के बारे में, जो चैलेंजिंग पर्सन है, जिस रिलेशनशिप में आप इंप्रूवमेंट चाहते हो, ट्राई इट आउट कि आपको उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही बोलना है। या जब आप उससे बात कर रहे हैं, उसने जो कहा बोलेंगे यस 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 यस, ऐसे ही जस्ट ट्राई इट आउट वंस, ओके। एंड देन एक्चुअली यू शुड ट्राई इट आउट एंड शेयर। इफ यू डोंट शेयर, जस्ट फील इट, ठीक है। सो लेट्स रीड. In the inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song, Man in the Mirror, which impacted hundreds of millions, one of the most powerful messages of all time was delivered. Change the person in the mirror and your world will change. Yes. So how many of you have heard this song? Michael Jackson का Man in the Mirror? हाँ, इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। उसके लिरिक्स इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स हैं इसके। इट्स अ क्वाइट ओल्ड सॉन्ग। आई थिंक आई वाज इन स्कूल ओनली एट दैट टाइम जब ये सॉन्ग आया था, एंड आई यूज टू सिंग दैट टाइम। हाँ, तो ये हमने बहुत गाया है, मैंने अकेले में गाया। पहले वो सॉन्ग बुक आती थी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हैड अ सॉन्ग बुक? आई यूज टू बाय सॉन्ग बुक्स। हाँ, सॉन्ग्स लिखे रहते थे उसमें, सारे इंग्लिश के, मडोना, माइकल जैक्सन, जॉर्ज माइकल, ये बहुत सारे MLTR, बहुत सारे सॉन्ग्स होते थे, एंड आई यूज टू लिसन टू देम। अब आजकल तो सब ऑनलाइन मिल जाता है। तो इट्स अ वंडरफुल, उसमें बिल्कुल यही लाइन थी, आई एम स्टार्टिंग विद द मैन इन द मिरर एंड आई एम आस्किंग हिम टू चेंज हिज वेज। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि क्या बोल रहा है, बट एक्चुअली व्हेन यू सी द वीडियो ऑल्सो ऑफ दिस सॉन्ग, इट्स वंडरफुल कि कैसे आप दूसरों की हेल्प करोगे तो आपको सबसे पहले वो चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। आप जब वेस्ट करना बंद करोगे तब आप किसी और को बोल सकते हो। इट्स लाइक दैट। आई विल शेयर द लिरिक्स, और इफ यू वांट यू कैन लिसन टू द सॉन्ग ऑल्सो। इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। उसमें यही है, इफ यू चेंज द पर्सन इन द मिरर योर वर्ल्ड विल चेंज। एंड हु इज द पर्सन इन द मिरर? ही इज नॉट टेलिंग अस यू चेंज योर सेल्फ, यू चेंज द पर्सन इन द मिरर। माने आपको जो पर्सन दिखाई दे रहा है, हाँ, लाइक उसको आप चेंज करो, तो फिर आपकी दुनिया बदलेगी। If you start feeling gratitude, if you start feeling happy, if you start showing kindness, then your world around you will change. आप जैसे बिहेव करोगे दूसरों के संग, वो चेंज होने लगेगा। तो धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया, दैट इज़ योर वर्ल्ड ना। एक एक करके आप जिससे इंटरैक्ट कर रहे हो, जो आप बात कर रहे हो, वो लोग भी चेंज होने लगेंगे जस्ट बाय चेंजिंग आवरसेल्व्स। सो लेट्स रीड. If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will have felt the change in your happiness, and you will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. Yeah, so see, she's telling us if you have followed the 26 practices, okay, if वो नहीं कह रही कि आपने तो की होंगी, क्योंकि उनको पता है किसी की कोई एक छुट्टी होगी, हो सकता है किसी की 2 छुट्टी हो, किसी ने
एक्चुअल में सारी कर ली होंगी। हाँ, तो अगर आपने वो की हैं टू दिस पॉइंट, मैंने आज तक अगर आपने सारी प्रैक्टिसेस की हैं तो आप डेफिनेटली चेंज हो गए। एंड अगर किसी और को नहीं दिख रहा है और आपको खुद में भी नहीं दिख रहा है कि क्या चेंज हो गए, हम सेम ही तो है, कुछ तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है, डेफिनेटली चेंज हुए हैं। आपको अपनी हैप्पीनेस में, अपने सर्कमस्टांसेस इन योर लाइफ, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप जो सोच रहे हो वो हो रहा है, जो आप चाह रहे हैं आपके सामने आ जा रहा है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली चेंज हुआ है इफ़ यू आर डूइंग द प्रैक्टिसेस। और जितना ज़्यादा फीलिंग से, जितना ज़्यादा आप शिद्दत से प्रैक्टिस कर रहे हो, उतना डेफिनेटली ज़्यादा आपके लाइफ में मैजिक हो रहा होगा। एंड इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द वर्ल्ड अराउंड यू। आप स्वीट हो, आप हैप्पी हो, तो आपसे लोग बात भी करेंगे आपके घर में, ठीक है। आप उनको डिफरेंटली देख रहे हो, आप उनको कम डांट रहे हो, आप उनको कम कंप्लेंट कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो या नैग कर रहे हो, जो भी आप पहले कुछ करते थे, ठीक है। जो हम लोग ये सब मानते नहीं, हम थोड़ी नैग कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई कर ले, हम तो चाहते हैं कि वो टाइम से खाना खा ले, या बट अगर आप कुछ भी इस टाइप की चीज़ें आपने थोड़ी सी भी कम कर दी हैं, तो पीपल अराउंड यू आर डेफिनेटली लुकिंग एट यू इन अ डिफरेंट लाइट एंड फीलिंग हैप्पियर टू बी विद यू। So you have to see, has this happened? Is it happening? If you have been doing the practices, it is definitely happening. Yeah. You have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your work, money, and health, for your dreams, and even for the people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. यस, तो आप देखिए डे वन से आपने जो भी प्रैक्टिस की है, जो भी प्रैक्टिसेस की हैं, आपने क्या किया है? अपनी हेल्थ के लिए तो किया ही है, ठीक है। आपने रिलेशनशिप्स के लिए किया है, अपने फ्रेंड्स के लिए किया है, आपने मैजिक वॉन्ड भी दूसरों के ऊपर किया है, अपने जॉब के लिए किया है, अपने घर के लिए किया है, एक एक अप्लायंस के लिए किया है आपने, अपनी टॉवल, बेड, सबके लिए किया है, ड्रीम्स के लिए भी किया है। इनफैक्ट जो आपकी सिक्योरिटी, पुलिसमैन, क्लीनर्स, जो कुछ भी है आपने उनके लिए भी किया है। बट एक्चुअल में ये सब कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। तो क्या आप अपने आपके लिए ग्रैटिट्यूड शो किया है आपने? हैव यू रिटन इन एनी ऑफ योर ब्लेसिंग्स दैट येस आई एम ग्रेटफुल टू बी प्रिया दुबे, और आई एम ग्रेटफुल टू बी यू, लाइक आपने अपने बारे में एक बार भी ब्लेसिंग कोई लिखी है? That you have taken this effort, you have made these changes in yourself, you have taken a stand for you in this life. उसके लिए क्या आपने ग्रैटिट्यूड किया है? तो शी इज टेलिंग अस द पर्सन इन द मिरर इज द पर्सन हु डिजर्व्स योर ग्रैटिट्यूड द मोस्ट। और उसके लिए कोई और नहीं करने वाला, आपको खुद के लिए करना पड़ेगा। छोटे से हमने कितनी सारी इस टाइप की बातें सुनी होंगी, हमने तो बहुत सी हमने भी सुनी थी, आई थिंक सभी बच्चे सुनते होंगे। पढ़ लो नहीं तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। इतना खाओगी तो मोटी हो जाओगी, एक्सरसाइज करो वरना पतली नहीं होगी, हाँ। हेयर पैक लगाओ, फेस पैक लगाओ, ठीक है। सामान ठीक से रखो, ऑल ऑफ अस हैव हर्ड दैट ना। बुद्धू हो गया, हाँ, लाइक सो मेनी थिंग्स वी कीप हियरिंग। वो जेस्ट में भी होता है बट वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में अटक जाता है, और अभी तक भी हम लोग ये सुनते रहते हैं, है ना। और जब हम लोगों से लोग कोई बात ऐसा कह रहे होते हैं, वो क्यों कहते हैं? वो हमको सजेस्ट करते रहते हैं इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि हम उनके हिसाब से नहीं होते हैं, हाँ। दे वॉन्ट टू मोल्ड अस इन देयर माइंड का जो भी उनका एक ठो कुछ पैरामीटर होगा, वो इसलिए हमको बोल रहे होते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं? हम उसको एज अ कंप्लेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, एज अ फॉल्ट इन आर सेल्फ, एज अ फ्लॉ इन आर सेल्फ, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम खुद भी रिपीट करते हैं। आपने नहीं बोला हाउ सिली ऑफ मी? कितनी बार बोला होगा आपने? हाउ स्टूपिड ऑफ मी? हम कितना डम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सिली क्वेश्चन कर रहे हैं ना। ये सारी चीज़ हम खुद ही अपने बारे में बोलते रहते हैं। आप देखिए ना, पूरी दुनिया बैठी हुई है हमारी कंप्लेंट करने के लिए, है ना। एवरीवन इज रेडी टू पॉइंट फिंगर्स एट अस। हम लोग को कुछ बोले, इसको हमको तो पता ही था इससे ये होगा नहीं, ये सुना है आपने? हमको तो पता था ये तो छुएगी सामान और गिर पड़ेगा, ये तो हमको अभी भी सुनने मिलता है। इसने किया होगा ना काम, इसीलिए यहाँ सामान गिर गया। आई सेड आप ही ने अट्रैक्ट किया। नाउ आई हैव दिस वंडरफुल आंसर। आपने कहा ना, आपने मैनिफेस्ट कर लिया, इसीलिए गिर गया सामान, ठीक है। सो नाउ आई एम ओके। पहले आई यूज्ड टू थिंक, हाँ देखा मेरे से तो कुछ काम ठीक से नहीं होता है, ठीक है। सो आप देखिए, जो कोई कुछ और बोल रहा है, तो हम लोग उसको कितना ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड वो क्या करता है, एक्चुअली हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं वो पिन कर रहा होता है, ठीक है। तो आज की जो प्रैक्टिस है वो इसलिए है कि हम उन सब चीज़ों को सुन के भी, आई एम टेकिंग अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई हैव हर्ड ऑल दैट, स्टिल आई हैव मूव्ड अहेड सो मच इन लाइफ, आई हैव डन सो मच इन लाइफ फॉर एवरी वन, माई फैमिली, माई पेरेंट्स, किड्स, हर जन के लिए हमने इतना कुछ किया है। सो आई हैव टू बी दैट ग्रेटफुल, ओके। आई हैव नॉट स्लेप्ट नाइट्स टेकिंग केयर ऑफ माई चिल्ड्रन, नॉट स्लेप्ट नाइट taking care of my family, for my house, done puja for my family,
आप सब ने ये किया है ना, बट हैव यू बीन ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस यू हैव डन? आप बोलोगे नहीं ये तो मेरी ड्यूटी है। हाँ, आपने कितने बार अपने फ्रेंड्स का लंच डिनर मिस करके अपने घर की टेक केयर की है? फैमिली के लिए आपने कितने सारे सैक्रिफाइस, आपको लगता होगा या दूसरे लोगों को लगता होगा पता नहीं, यू हैव थॉट दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट जो आपका एक्चुअल में मन था, यू हैव नॉट डन दैट बिकॉज यू टुक अ डिसीजन कि येस मेरी फैमिली मेरे पहले है, हाँ, या मेरा वर्क मेरे पहले है, एंड यू हैव chosen to keep your work ahead of your family. So all these decisions you took. या तो आज से आपको उन सब चीज़ों के लिए भी अपने आप को रिस्पेक्ट करना है और ग्रैटिट्यूड शो करना है। ओके, सो वाई डू वी फील गिल्टी कि 1 घंटा अगर हम ये सेशन कर रहे हैं या 1 घंटा हमने वर्कआउट कर लिया है, वी डू ऑल दैट ना, हम लोग को जस्टिफाई करना पड़ता है नहीं काम किया था ना इसलिए वर्कआउट के लिए जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है, वरना फैमिली क्या सोचेगी, इसका भी काम है उसका भी काम है, क्या करें, वी थिंक ऑल दैट ना। सो ये सब हमको नहीं सोचना, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं तो क्या आप कर रहे हो, यू आर कंप्लेनिंग अबाउट whom? अबाउट योर सेल्फ। एंड क्या होगा, द मोर यू कंप्लेन अबाउट योर सेल्फ, द मोर सिचुएशंस will keep coming that you are complaining more about you. सीक्रेट मूवी में ही था ना, आई डोंट नो मूवी में था कि नहीं, बुक में तो ये था। क्यों ऐसा होता है कि आप अपने आप को सबसे लास्ट में रखते हो फैमिली में, कि सब घर खा लेगा फिर हम खाएंगे। हाँ, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बाकी लोग क्या करेंगे, वो भी ऐसे ही करेंगे। मम्मी तो कुछ भी खा लेंगी, मम्मी को तो कोई चिंता है ही नहीं। हाँ, पापा को तो ठीक है कोई बात नहीं, उनको न्यू शर्ट्स उनको नहीं पसंद है। हाँ, कितने सारे नहीं, आपके पापा ऐसा करते हैं, मेरे को कोई शौक नहीं, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। ऑल डैड्स आई थिंक डिड दैट, ऑल डैड्स डिड दैट। वो आपके लिए सामान ले आएंगे, अपनी वही वॉच पहने रहेंगे इतने सालों साल, दे विल नॉट बाय अ न्यू वॉच बट दे विल गिफ्ट यू अ न्यू वॉच एवरी मे बी अ फ्यू ईयर्स। हाँ, उनका वही फ़ोन, मुझे फ़ोन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यही फ़ोन ठीक है। पापा लोग ऐसे करते हैं ना, और मम्मी लोग अपनी तरीके से करते हैं, पापा लोग ऐसे करते हैं। तो क्या होता है, आपको भी जो कुछ लाना होता है, जब तक ये नहीं समझ में आ रहा होता है हम लोग को, भाई उस दिन पापा को नहीं चाहिए, उनके पास तो वो ठीक है, उनको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप ये वो कुछ नहीं करना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस और डन दिस? क्या होता है, आप अपने आप को लास्ट रखोगे, एवरीवन विल स्टार्ट कीपिंग यू एट द एंड, बिकॉज दिस इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। ओके, सो सिंस ये सीक्रेट उसमें था ये एकदम, आई विल जस्ट इफ नॉट इन द मूवी आई विल क्लिक अ पिक्चर फ्रॉम द बुक एंड शेयर इट। Okay, so we are not to do that. We have to start loving the person because we want everyone to love us. So first we have to start giving love and respect to ourselves. Okay, so let's read. When you are grateful to the person in the mirror. No. When you are grateful to. Okay. Sorry. Yeah. When you are grateful to be the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I'm not good enough completely disappear. And with them, every dissatisfying, discontenting, and disappointing circumstance in your life magically disappears too. Yeah, तो अब रॉन्डा बन कह रही है when you are grateful to be the person in the mirror, ठीक है, माने आज आप जैसे भी हो, जो भी हो, when you are grateful to be that person in the mirror, उस दिन आपकी फीलिंग्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट और आई एम नॉट गुड इनफ, उस दिन वो गायब होंगी। उसके पहले तक आपको ये सब रहेगा। क्या आप एक्चुअल में ग्रेटफुल हो टू बी यू? आपकी जो एज है, आपकी जो स्किन है, आपका जो सेक्स है, आपकी जो रिलीजन है, उस सब चीज़ के लिए क्या आप ग्रेटफुल हो? आप उसको फॉलो करते हो या नहीं करते हो? आप डाइट करते हो नहीं करते हो? आप वर्कआउट करते हो नहीं करते हो? हम लोग खुद अपने बारे में इतनी सारी बातें बोलते हैं, खुद बोलते हैं। हाँ, क्या उन सब चीज़ों को भूल के जिस दिन आप यू आर ग्रेटफुल टू बी योर सेल्फ, उस दिन ये सारी चीज़ें कंप्लीटली डिसअपेयर होंगी। ये लेकिन बहुत चैलेंजिंग होता है। हाँ, आप खुद देखोगे कि कैसे कैसे आप अपने लाइफ में आज जहाँ पे जो भी आए हो, इतनी सारी चीज़ें हुई हमारे संग, हम खुद हमारे बारे में इतनी सारी बात बोलते रहते हैं। हाँ, हमको पता होता है कि हम डाइट करेंगे नहीं करेंगे, काम करेंगे नहीं, हमको पता होता है। हम लोग पहले से ही अपने बारे में ये सारी बिलीव्स खुद ही बोलते रहते हैं, और हमको क्या बोला गया है, जो हम बोलेंगे वही होता है। लेकिन हम अपने बारे में ये नहीं अभी तक चेंज कर पाए, या मे बी ग्रेजुअली थ्रू दिस बुक थोड़ा थोड़ा चेंज कर लिया है हमने। तो अब आज का प्रैक्टिस पूरा इसी पे है कि हाउ यू चेंज योर सेल्फ एंड चेंज द वर्ल्ड अराउंड यू। ओके, सो लेट्स रीड। Negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life because they are more powerful than any feelings you have about anything or anyone else. Wherever you go and whatever you do, you take those negative feelings with you in every moment, and those feelings taint everything you touch,
and they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. या अब क्या हुआ, किसी और ने हमको कोई एक बात बोली, ठीक है, या तो क्या होता है, वो तो बोल के चला गया, अगर वो बात मेरे मन में रह गई तो क्या होता है, वो थॉट क्या कर रहा है, वो थॉट कहाँ है, ब्रेन में। ब्रेन में सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर। आप वाटर को जो भी बोलते हो, वाटर की जो वो मेमोरी है वो क्या कर रही है, आपके एक एक सेल में वो थॉट को सर्कुलेट कर रही है, ठीक है। किसी और ने बोला तो अगर आपने उसको रख लिया तो ये होगा, अगर नहीं रखा तो ठीक है। लेकिन अगर आप खुद ही अपने बारे में ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, क्या सोच रहे हो आप, ओहो आई एम सो फैट, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, हम कोई बात नहीं, एक वर्कआउट करके तो कुछ हो नहीं, लेट मी हैव दैट लड्डू, लेट मी हैव दैट भुजिया। आप क्या कर रहे हो, आपका ये जो नेगेटिव थॉट है आपको पूरा टाइम इट इज़ देयर ऑन योर माइंड। क्या आप उसको हटा सकते हो अपने माइंड से, आप नहीं हटा पाओगे, आप उसको कैरी कर रहे हो अपने संग पूरा टाइम, और आपकी बॉडी उसी थॉट को आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम सेट करती जा रही है, आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाती जा रही है। फिर क्या होगा, आप बिल्कुल वैसे ही होते जाओगे, एक एक करके धीरे धीरे ऐसे करके वो और बिलीफ स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, आपको हर चीज़ में, लाइक शी इज टेलिंग अस ना, दीज फीलिंग्स टेंट एवरीथिंग यू टच एंड इट कीप्स ऑन अट्रैक्टिंग व्हाट, मोर सच सिचुएशंस कि आप अपने बारे में नेगेटिव बातें बोलो। तो सबसे पहले हमको हमारे लिए नेगेटिव बातें बोलनी बंद करनी है, सबसे पहले। अब आपको लग रहा होगा ये रॉन्डम ने हमको फर्स्ट डे क्यों नहीं बताया, आज इतने दिनों बाद क्यों बता रही, 27 डेज बाद क्यों बता रही हैं। तो अगर वो हमको फर्स्ट डे बता देती कि लव योर सेल्फ, बी ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ, तो क्या हो जाता हमारा, हमको जब हमको ग्रैटिट्यूड ही नहीं पता है तो हम कैसे हो जाते, हम ईगोइस्ट हो जाते। आई डोंट नो हम लोग कैसे हो जाते, कुछ तो उन्होंने सोच के इस बुक के लास्ट में हमको ये प्रैक्टिस दी है, एकदम लास्ट में, कि हम समझ गए हैं कि ग्रैटिट्यूड कितनी इंपॉर्टेंट होती है, रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एवरीथिंग अराउंड अस इज इंपॉर्टेंट। देन शी इज टेलिंग अस दैट ऑल दिस इज good, but what is most important, being grateful for to be ourselves, okay? And if we start feeling positive, we'll attract more situations which will make us stronger, better, more confident. Yeah. When you are grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. Yeah. Well- अब हम लोग बोलते हैं ना सा, हम तो ये डिजर्व नहीं करते हैं, हम तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो व्हाट एम आई सेइंग, वी आर टॉकिंग ऑल नेगेटिव और कंप्लेनिंग थिंग्स अबाउट आवरसेल्व्स, तो ये हमको एकदम नहीं बोलना है। एंड शी इज टेलिंग अस व्हेन यू आर ग्रेटफुल टू बी यू, माने आप जो अर्न करते हो, आप जैसे दिखते हो, आपकी जैसी फैमिली है, आपके जैसे रिलेशनशिप्स हैं, उन सब के लिए आप ग्रेटफुल हो, ठीक है। टू बी यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल माई रिलेशनशिप्स द वे आई कैरी देम, ठीक है। उस समय जब हम ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट करेंगे और अच्छी अच्छी सिचुएशंस मेरे लाइफ में आएंगी, ठीक है। आई एम सो ब्लेस्ड टू बी अ गुड एम्प्लॉयर, आई एम सो ब्लेस्ड टू बी अ गुड एम्प्लॉय, आई एम ग्रेटफुल टू बी इन दिस जॉब। आप अपने बारे में जितनी अच्छी चीज़ें बोलेंगे, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव्ड, आई एम वांटेड, आई हैव बेस्ट रिलेशनशिप्स इन द वर्ल्ड, जितना ज़्यादा आप अपने आप को ऐसे बोलोगे, आप उसको अफर्मेशंस बोलिए या जो भी बोलिए, द मोर यू रिपीट, द मोर यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, यू विल अट्रैक्ट सिचुएशंस विच विल मेक यू फील गुड, और उससे लाइफ और अच्छी अच्छी होती जाएगी। शी इज टेलिंग अस ना, ग्रैटिट्यूड फॉर योर सेल्फ एनरिचेस यू, माने अब आपको वो कुछ नहीं बोल रही हैं कि मनी के बारे में बोलना है, क्या बोला है, यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, ओके। Please read. Whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken from him or her. To do Yeah. the magic mirror practice, go to a mirror right now. Look directly at the person in the mirror and out loud say the magic words, "Thank you," with all your heart. Mean it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. या तो हमारी प्रैक्टिस ये है कि कल आप जब मिरर, कल क्या, अभी जब इस सेशन के बाद आप मिरर देखेंगे, आप जाएंगे ना वॉशरूम एक बार, वहाँ पे एक मिरर है, आपके रूम में एक मिरर है, आप जितनी बार कल मिरर के सामने से निकलेंगे या आज रात से मिरर के सामने जाएंगे, यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ एंड से थैंक यू। आप
और भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और भी रौंडा बन बताएंगे हमको, बट ये जो लाइंस हैं 1 2 3 4 5, लाइक 5 आई थिंक है इसके अंदर, अगर नहीं है 5 तो आपको 5 बार तो बोलना ही अपने आप को थैंक यू, ठीक है। आपको ये रीजंस नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको अपने रीजन समझ में आते हैं, यू हैव टू लुक इन द मिरर एंड से थैंक यू, यू हैव टू लुक एट द मिरर इन द आईज ऑफ द पर्सन इन द मिरर, ठीक है। आंखों में आंखें डाल के आपको थैंक यू बोलना है। अगर सबसे पहले नहीं जाते थैंक यू बोला और बाहर आ गए, नहीं, आपको पहले देखना है 1 मिनट, आप एक्चुअल में यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ आई टू आई एकदम, ठीक है। आप बोलोगे अभी देखना बहुत ये चैलेंजिंग होता है, एकदम से नहीं देख पाते। द फर्स्ट डे आई हैड डन दिस प्रैक्टिस, हम नहीं कर पाए थे, आई वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग, मेरे मुंह से थैंक यू ही नहीं निकला, बिकॉज मेरा कुछ एक बैकग्राउंड है ऐसा, आई वॉज नॉट नहीं, आई वॉज लेस इन कॉन्फिडेंस, हम फोटोग्राफ्स नहीं क्लिक कराते थे, ठीक है। अभी भी अभी फिर भी ठीक हो गए, फोटोग्राफ्स नहीं क्लिक कराते, अकेली फोटोग्राफ्स तो मेरी बहुत ही रेयर होती थी, स्कूल की जो पासपोर्ट टाइप की होती थी ना, बस उसी टाइप की होती थी, हाँ। एंड आई यूज टू बी लाइक जो भी कुछ था कुछ मन में आ गया था। तो अभी व्हेन आई डिड दिस प्रैक्टिस लास्ट ईयर, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली सॉ इन द मिरर एंड सेड थैंक यू, हाँ। उसके पहले व्हेन आई एम ब्रशिंग, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसी है, यू नो, आई वाज जस्ट लुकिंग एट दीज थिंग्स, जैसे विंदर बोल रही थी ना कि हेयर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, जस्ट मिरर में देख रहे हैं यहाँ फैट। एंड ट्रायल रूम वॉज लाइक अ टॉर्चर फॉर मी। ट्रायल रूम का मिरर ऐसे होता है, सब जगह से कुछ ना कुछ फ्लॉ ही दिखते रहते थे मेरे को मिरर में। एंड आई यूज टू जिसका सबसे छोटा ट्रायल रूम होता है उसमें तो मेरे को जाने का ही नहीं मन करता, बिकॉज द मिरर वॉज राइट देयर। एंड ये प्रैक्टिस जब हमने फर्स्ट दिन की, हमको इतना रोना आया, हम देख ही नहीं पा रहे थे मिरर में, थैंक यू नहीं बोल पा रहे थे हम। एंड इसके बाद से जब भी हमने प्रैक्टिस शुरू की, अब तो लाइक यू नो व्हेन आई लुक इन द मिरर, आई हैव अ मिरर राइट हियर, ऐसे तो दिखाई नहीं देगा बट आई हैव अ मिरर राइट हियर, मेरे रूम में यहीं पे स्पेस है ड्रेसिंग की मिरर की। एंड हम उसमें देखते नहीं थे, उसमें देखते थे ओहो, लाइक यू नो आई वाज जस्ट यू नो नॉट, जैसे लोग शॉप्स में जाते हैं मिरर देखने, दे विल सेट देयर, आई वुड एस्केप इट, नो, आई डोंट वांट टू बी कॉट लुकिंग इन द मिरर, आई यूज्ड टू बी लाइक दैट, हाँ। अब वो चेंज हो गया, नाउ एटलीस्ट आई डोंट यू नो रन अवे फ्रॉम द मिरर और डोंट शाई फ्रॉम माई रिफ्लेक्शन, अब ये नहीं होता है। बट पहले तो ऐसा ही होता था, कोई मिरर है आई वुड नेवर लुक एट इट, आई डिड नॉट वांट टू बी कॉट लुकिंग एट माई सेल्फ इन द मिरर, हाँ। जुम्बा क्लासेस जाते थे, हम सबसे पीछे खड़े होते थे, लोग सोचते होंगे कि हम टॉल हैं इसलिए खड़े होते थे, उसलिए तो होते ही थे खड़े, बट वैसे भी हम सबसे पीछे खड़े होते थे। देन आई डू नॉट वांट टू, खाली इतना सा ही मुंह दिखता था ऐसे, बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट 5'8", तो सब लोग आगे रहते थे और हम एकदम पीछे खड़े रहते थे। तो आई यूज टू बी लाइक दैट, अब नहीं है। अब जब हम अपने रूम में वर्कआउट करते हैं आफ्टर दीज एक्सरसाइजेज, अब जब हम रूम में वर्कआउट करते हैं, लुक इन द मिरर एंड आई से थैंक यू, आई लव यू, मैंने जब ज़्यादा थक जाते हैं ना तो आई पुश माई सेल्फ लाइक दिस एंड देन आई डू इट, एंड इतना अच्छा मेरे को लग रहा है। ऑल दीज सेशंस आई कुड टेक बिकॉज ऑफ दीज प्रैक्टिसेस, वरना आई वॉज टॉकेटिव बट ओनली यू नो विद माई फ्रेंड्स, आई वॉज नेवर कैमरा फ्रेंडली, अब बोलो आप जो भी बोलो, स्टेज फ्राइट, ये सारी चीज़ें बहुत होती रहती थी, अभी भी हैं बट अब बहुत बहुत इम्प्रूव हो गई हैं। ओके, सो दिस प्रैक्टिस इज़ अमेजिंग। जिस किसी को भी ऐसा लगता है आपको ये प्रैक्टिस करनी, यू हैव टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, यू हैव टू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर बीइंग यू, फॉर ऑल द डिसीजंस दैट यू हैव मेड, फॉर ऑल द डिसीजंस दैट यू हैव नॉट मेड करेक्ट। हर चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। कोई और नहीं समझ सकता आपने जो भी डिसीजन लिए, क्यों लिए, कैसे लिए, है ना। दूसरे लोग बहुत इजीली हमको जज कर देते हैं, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने वो गलत डिसीजन ले लिया, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बहुत ईजी होता है दूसरे लोगों को बोलने के लिए, और वो जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सेट हो जाता है एंड वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कि हाँ वो हमने गलत किया, हाँ हमने ऐसे नहीं करना था, हमने क्यों ऐसा किया या क्यों ऐसा नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें ही आज हमको हम बनाइए, राइट। ऑल द थिंग्स दैट यू हैव डन, every little action that you took, every little word you have said has made you what you are। and और फिर भी आप देखो आप सब यहाँ पे हो आज, 43 people, everyone is here taking a stand for yourself, making some, you know, you want some happiness in your life, you want to improve your life। तो आपको उसी चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, ठीक है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर यू जस्ट एज यू आर, ठीक है। कल आप और अच्छे होगे, कल आप और पतले होगे, जो भी होगे नहीं होगे, बट आपको आज के लिए ग्रेटफुल होना है। Okay, please read. Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of the day today, and say the magic words thank you every time you look at yourself in a mirror. If you're not in a position to say the magic words out loud at any particular time, then you can say them in your mind.
And if you're really brave, you can look in the magic mirror and say 3 things about yourself that you are grateful for. या तो कल शाम तक जब अपन मिलेंगे, उससे उससे ज्यादा भी करना है आपको, बट कल शाम तक आपको क्या करना है, जितनी बार आप अपना रिफ्लेक्शन दिख रहे हो, अगर आपको अभी भी कैमरे में आपका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, आप माइंड में थैंक यू बोलो अपने आप को, ठीक है। जितने बार आप मिरर में देख रहे हो अपने आप को, यू हैव टू से थैंक यू, ठीक है। और आप जोर से बोलो, वो बेस्ट है। जोर से नहीं बोल पा रहे हो तो मन में तो आपको बोलना ही बोलना है। एंड शी इज टेलिंग अस, इफ यू आर रियली ब्रेव, ठीक है, इफ यू आर रियली ब्रेव, तो आपको अपने बारे में 3 चीजें बोलनी है, ठीक है। थैंक यू, हमको प्रोसेस पता है कैसे बोलना है, कैसे बोलना है। थैंक यू, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर बीइंग यू, बिकॉज आपको पता है, ठीक है। आपको ऐसे बोलना है, आप ऐसे बोलिए, या जैसे आपको, आई एम थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर बीइंग सो काइंड, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू आर सो काइंड हार्टेड, और यू आर सो टॉल, और यू आर सो डिसिप्लिन्ड। जो आपको लगे आपको उसके बारे में बोलना है। समवन सेड ना, किसने कहा ब्यूटीफुल स्माइल के लिए, आई फॉरगॉट, समवन सेड ना, भारती जी ने कहा था, यू आर ग्रेटफुल फॉर योर ब्यूटीफुल स्माइल। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसके बारे में आपको बोल के थैंक यू बोलना है, ठीक है। और स्टार्टिंग आपको ऐसे करनी है, आपको जोर से मिरर में देख के बोलना है, एटलीस्ट 5 बार आपको बोलना है थैंक यू, अपना नाम लेके बोलिएगा, थैंक यू प्रिया, थैंक यू सुरभि, जो भी आप लाइक, जो आपका नाम है ऑफकोर्स आप वही बोलोगे। मिरर में देख के आपको जोर से बोलना है, आंखें में आंखें डाल के, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू 5 बार आपको बोलना है, ठीक है। यू हैव टू फील इट। और उसको बोलने के पहले जस्ट लुक एट योर सेल्फ, जैसे अपन पिक्चर में देखते हैं ना, लाइक रिमेंबर आप छोटे में आंखों में कौन पहले ब्लिंक करता है, हाउ मेनी टाइम्स करा है ना हम लोगों ने ये गेम छोटे में, राइट। सिबलिंग्स के संग, स्कूल में फ्रेंड्स के संग, या मे बी आपने अपने स्पाउस के संग भी किया होगा, आई डोंट नो। हाँ, तो आज आपको पहले, सबसे पहले यही करना है कि आपको आंखों में आंखें डाल के देखना है, ओके, कि कितने देर आप, यू हैव टू सी, जस्ट कुछ थॉट नहीं आना है, कुछ नहीं आना है, जस्ट लुक एट दैट पर्सन, ठीक है। देन यू स्टार्ट विद थैंक यू। आपको 5 बार, 1 बार ये सेट आपको पूरा करना है। उसके बाद आप जितने बार भी आपने आपको मिरर में देख रहे हो, आपको थैंक यू बोलना है, जोर से बोलना है, मन में बोलना है, यू हैव टू से इट। या please read. If for any reason in the future you're not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserves your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. या तो व्हेन यू आर नॉट काइंड टू योर सेल्फ मीन्स आप अपने बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहे हो, तो आपको पता है क्या करना है। यू हैव टू गो टू द मिरर एंड यू हैव टू से 10 ब्लेसिंग्स। ये करना है ना, एक कंप्लेंट के लिए आपको 10 ब्लेसिंग्स करनी है, तो आपको वो ही करना है, ओके। एंड बिकॉज वो सबसे ज्यादा आपका ग्रैटिट्यूड डिजर्व करता है। या When you are grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you are grateful, you don't criticize yourself when you're not perfect. When you are grateful for being you, you are happy and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances, which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. यस, तो आपको अपने आप के लिए ग्रेटफुल होना ही होना है, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल हो रहे होते हो तो आप अपने आप को ऑफकोर्स कोई चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करते हैं। व्हेन यू आर, यू नो, आप ऐसे ही देखिए ना, आपको अपना बच्चा सबसे अच्छा लगता है, राइट, या आपको अपने पापा सबसे अच्छे लगते हैं, या आपको अपना हस्बैंड सबसे अच्छा लगता है, या अपनी वाइफ सबसे अच्छी लगती है, तो क्या आप उसके बारे में, आपको ऐसे नहीं होता, हम लोग को दिख रहा है कितना नॉटी बच्चा है, दिख रहा है हम लोग को, बट उसकी मम्मी के जैसे ना पति बंदी, उसको तो उसका बच्चा इतना अच्छा लग रहा है, उसको तो सब चीज़ अच्छी लग रही है ना। तो जब आपको उसमें कुछ कंप्लेंट ही नहीं दिखेगी, दैट इज द टाइम यू लव दैट पर्सन। तो हमको हमारे बारे में भी ऐसे ही करना है, और ये प्रैक्टिस इसलिए हम लोग आज कर रहे हैं क्योंकि इस दिन के पहले हमने कभी भी ये प्रैक्टिस की होती तो हम लोग थोड़ा सा ना वो हो जाते, ईगो आ जाता हमारे अंदर, है ना, बिकॉज लाइक वी आर जस्ट प्रेजिंग आवरसेल्फ, वी आर जस्ट लविंग आवरसेल्फ। बट आज हमको ये समझना है कि हम क्यों हो रहे हैं ग्रेटफुल, okay, because of all the decisions that you took, all the stands that you took for yourself, or all the scoldings that you took for yourself, everything that you have done in your life or taken from others, उन सब चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हो, ठीक है। आप अपने बारे में क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लव कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे, तो पीपल अराउंड अस विल डू दैट। more and more situations will come when people are appreciating you, loving you, and you know, wanting you in their lives. हम लोग को यही चाहिए ना कि हम सबके फेवरेट हों। अपने जब होंगे तभी सबके होंगे। हम लोग बोलते नहीं है, लेकिन चाहते यही है कि हम ही सबके फेवरेट हो, मेरी कोई सबसे ज़्यादा लाइक मिले। एवरीवन वांट्स दैट ना, कि मैं ही बेस्ट फ्रेंड हूँ सबकी,
हाँ, मेरी भले ही एक हो बट हम सबकी बेस्ट फ्रेंड हैं। ऐसा ही चाहते हैं ना हम लोग कि हम लोग बेस्ट एम्प्लॉय हों, बेस्ट एम्प्लॉयर हों, बेस्ट डिज़ाइनर हों, जो भी हो, बेस्ट मॉम हो, बेस्ट मॉम इन लॉ हो, जो आप हो आप उसमें बेस्ट होना चाहते हैं। बट उसके लिए पहले हमको खुद को अपने आप को बेस्ट फील करना होगा, देन ओनली विल दिस हैपन, एंड दिस विल ओनली हैपन व्हेन वी आर चेंजिंग द पर्सन इन द मिरर. What do we have to change? We have to start loving that person. We have to start being more grateful for that person. Okay, so when you see the magic in the person in the mirror, your whole world will change. क्योंकि जब हमारी आंखों में वो ब्यूटी आ जाएगी to see in ourselves, yeah, when this beauty we see in ourselves, we will see that beauty in everyone around us also. Yeah, please read. Magic practice number 27. The magic mirror. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, each time you look at yourself in a mirror today, say thank you and mean it more than you have ever before. या तो आज Third, तक आपने इतनी प्रैक्टिसेस की हैं, इतनी सारी प्रैक्टिस की है ना, 26 प्रैक्टिसेस की हैं, उसमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स लिखी हैं, और सब में आपने कोशिश की होगी कि एकदम अच्छी फीलिंग से आपने थैंक यू किया है। नाउ कल जब आप मिरर में दिखोगे या अभी जाके आप मिरर में दिखोगे, एंड यू हैव टू से थैंक यू एंड मीन इट मोर देन यू एवर हैव बिफोर। माने जितनी फीलिंग्स आपने अभी तक लेके आई थी उससे ज़्यादा फीलिंग आपको अपने लिए लेके आनी है। ओके, if you are really brave, while looking in the mirror, say 3 things you are grateful for about yourself. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. yeah, so the practice is clear to everyone. Yes, so we'll do the gratitude and then we will do this practice also now. ओके, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको या तो मिरर के पास जाना होगा इफ़ यू डोंट वांट टू स्विच ऑन योर कैमरा, अदरवाइज यू स्विच ऑन योर कैमरा एंड यू पिन योर सेल्फ। सबको आता है वो, हाँ, यू स्विच ऑन द कैमरा एंड यू पिन योर सेल्फ। जिसको नहीं आ रहा है मे बी यू कैन आस्क समवन अराउंड यू, नहीं तो आप मिरर के पास चले जाओ। ओके, एंड देन यू डू दिस प्रैक्टिस। सो वील डू द ग्रैटिट्यूड एंड देन वी विल डू दिस प्रैक्टिस। ओके, सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आइज एंड बी ग्रेटफुल टू द सुप्रीम पावर. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty for giving me this wonderful, blessed life. Thank you for giving me my lovely, special mama who made me so pretty, who gave me her genes and taught me everything that I know. Thank you for giving me my lovely, special papa who gave me so much, right from my storybooks, my toys, my books, my education, everything. I'm so grateful to him. Thank you for giving him to me. Thank you for all my friends who are always so loving and so supportive. Thank you for the abundance given to me by the 5 elements of nature. Thank you for this wonderful group of people who is with me, who are with me in this beautiful journey of gratitude. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everyone. So Thank you. Thank you. Thank you, Priya. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। अभी नहीं है सेशन खत्म, हम लोग सबको भी मिरर प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो प्लीज़ आई विल कीप सेइंग थिंग्स, आपको कुछ ऐड करना हो आप अपने मन में ऐड कर लेना, ठीक है, बट वी विल डू दिस एंड व्हेन वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस आपको सिर्फ अपनी आंखों में दिखना है, ठीक है। मे बी कैमरा के कारण थोड़ा सा आपको अगर ऑड लगे, ठीक है, तो मे बी यू कैन टेक अ मिरर इफ़ यू फील दैट इज़ ओके। सो प्लीज़ आप अपना कैमरा खाली पिन कर लीजिए सो दैट यू आर विजिबल टू योर सेल्फ। Okay, and those who can't switch on your camera, please go to a mirror and look in your eyes and do this practice. Okay, so we all know what we have to do. We have to sit and do this practice. लेटे लेटे नहीं होना चाहिए, ठीक है, yeah, so please sit straight and look in your eyes. Such pretty eyes. Look deep in your eyes. What do you see? Thank you for making me see this beautiful world. Thank you
You are an amazing person. Thank you. You are the most beautiful person I have seen. I'm so proud of you. You are super intelligent. Thank you. Your smile is so good. It comes straight from the heart. Thank you for all the education that you've got. Thank you for your good marks, for your not so good marks. Thank you for all your friends. You always stood for them. You always gave a shoulder to them. Thank you for crying on their shoulders. Thank you for loving your parents. Thank you for not listening to them also. Thank you. Thank you for all the heartbreaks you had. You are much stronger now. I really, really, really love you. I love you. Thank you for being so kind, for being so generous. Thank you for loving Mother Nature. Thank you for taking a stand for yourself. I love you for all the things that you are, for all the things that you are not. I respect you for each and everything that you have done. I respect you for each and everything that you have not done. Thank you. I accept you. I accept you just the way you are. I accept you for everything that you have done. And I also accept you for everything you have not done. I care for you. I'm so, so grateful for you. I'm really grateful for everything that you have done. And I'm also grateful for everything that you have not done. Thank you. Thank you for listening to all the things that I have told about you. Thank you for accepting me. I really, really love you. I'm really liking you. Thank you for all the sleepless nights, whether it was for studies, for parties, for friends, for movies, for all my sleepless nights, for all the fun I've had, for all the tears, for all the joys, each and everything that I love. It is only because of you. Thank you. All these years, I have done things for myself, for my family, but you have always accepted me. Thank you. Thank you for showing me my fears, my tears, my joy, my happiness. Thank you. I love you. I really, really love you. Thank you. Thank you for being in this journey of gratitude. Today, I'm learning to love you much more. Thank you. Thank you. I love you. Thank you. You can kiss yourself if you want. Yes. Thank you. Yes. Good. How are you feeling? I'm feeling happy. It's amazing, amazing, amazing. Happy. Happy ना एकदम ऐसे ही करना है आपको इतनी जितना देर तक देखा ही नहीं है कभी अपने खुद को. telling you I'm telling you Seriously, मैं तो आँख ही बंद कर रही थी सिर्फ मेडिटेशन. आंखें बंद कर लेती देविंदर स्वीट नहीं अब यही देखना है जब मिरर में देखे ना पहले हम हमारे साइड ना ऐसे ही करते थे अरे ये ठीक नहीं है यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है अब नहीं
अब नहीं बोलते, बिकॉज पता है ना जो बोलेंगे वो ही आएगा। हाँ, तो ये तो अब करना ही नहीं है। और जितना ज़्यादा आप लव करो अपने आप को उतना अच्छा। जिसने ऐसा नहीं किया है ना, हाँ, ये इतनी अच्छी, आपको पता है इस मिरर के ऊपर पूरी एक बुक है, मिरर वर्क। दिस होल बुक इज ऑल अबाउट दिस ओनली। Yes, I You know. can, Okay. yes. Yeah, my friend is practicing with Ashmin ma'am. Okay, okay, wonderful. I had also done it, but पूरा मेरा हो नहीं पाया because I was traveling, तो continuous practice नहीं। It is 21 days. You are just looking in the mirror and doing this practice. बहुत कुछ है, सिर्फ मिरर में देख के नहीं है। मिरर में तो देख के आप जितना ज़्यादा अफर्मेट करोगे उतना अच्छा। दिस इज व्हाट दिस बुक इज टेलिंग अस। और ये जो हमने लास्ट में बोला ना, ये आपको एल रैक बोलते हैं उसको, एल रैक। आई लव यू the way you are, I love you the way you are not. Okay, I respect you the way you are, I respect you the way you are not. I accept you the way you are, I accept you the way you are not. I am grateful for what you are, I am grateful for what you are not. ये देख के अगर आप मिरर में देख के अगर आप ये बोलोगे एल रैग, ओके, लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट, ग्रैटिट्यूड, ये बहुत पावरफुल है। आपको जो चाहिए, आपको पता है ऋतिक रोशन, ये तो मैंने बताया है, बताना ही भूल गए। ऋतिक रोशन फर्स्ट मूवी के पहले कैसा था, अगर आपने कभी, हमको तो याद है जब कहो ना प्यार है में आया था ना फर्स्ट टाइम, तो उसके इतने सारे इंटरव्यू आते थे, मैगजीन्स में ही आते थे ना तब, तो वुड रीड ऑल ऑफ देम, सब फ्रेंड्स के तरह। आई ऑल्सो यूज टू रीड। ही हैड रिटन हाउ ही चेंज, ही यूज टू स्टैमर, कैसे मिरर में देख देख के प्रैक्टिस करके उसने अपने आप को चेंज किया। ठीक है, क्यों मिरर में। एंड अनिल कपूर का तो एग्जाम्पल ही देना भूल गया, हम इतना सीरियस हो गया आज का सेशन। अनिल कपूर क्या करता है, वो भी यही करता है। हाँ, वो जब मिरर से निकलता है वो हाई हैंडसम बोलता है। कैन यू बिलीव इट। तो कभी कहीं ना कहीं, आई डोंट नो कहाँ पढ़ा, कपिल शर्मा में पढ़ा या सुना या कहीं पे पढ़ा हमने, ही डज दैट व्हेनेवर ही पासेस अ मिरर, ही सेज हाई हैंडसम। आई वाज लाइक वाह। तो ऐसे ही अभी भी अपने आप को, he feels he's so young, right? He looks also, Priya, this Yeah. like at this Yes, age, yes. oh my He God. looks also amazing at this age, हाँ। तो वो कैसे हुआ? And it's not that he's self obsessed, ये सारी practices हैं। वो अगर हम लोग को लगता है सेल्फ ऑब्सेस्ड, बट जब आप ये मिरर बुक करने लगोगे या ये मिरर प्रैक्टिस करने लगोगे, इट इज ऑल अबाउट बूस्टिंग योर सेल्फ, इट बूस्टिंग आवर कॉन्फिडेंस। और ये इतनी अच्छी है। हम एक्चुअल में अब जब हम मिरर के सामने से निकलते हैं, आई रियली से थैंक यू, आई लव यू, हम बिल्कुल ये बोलते हैं हम। एंड उससे इतना चेंज आ गया है, इतना चेंज आ गया है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे बोलते हैं ना, वो बढ़ गया है। और ये एक्चुअल में बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस है। इफ़ यू कैन डू दिस बुक, नथिंग लाइक इट। ये हमने शुरू की थी, बट इसमें ना बहुत लिखना है, बहुत लिखने की इसमें जर्नल है, सिर्फ ये वाली बात नहीं है इसमें लिखने का है बहुत। यू हैव टू गो बैक इन योर पास्ट, इन योर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर थिंग्स एंड राइट डाउन। तो उसमें इसमें बहुत कुछ है लिखने का। तो आई कुड नॉट कंप्लीट, 21 डेज की है अभी, सो आई हैव थॉट आई विल स्टार्ट अगेन ऑन माई ओन। तो वो ये ऐसी बुक है ये। और ये जो प्रैक्टिस है, आप देखिए, ये रोंडा बर्न हमको लास्ट में ये प्रैक्टिस बोली करने के लिए, सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट दिस प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट। वरना शुरू में जब हमको ग्रैटिट्यूड ही नहीं पता है तो हम अपने लिए क्या ग्रैटिट्यूड करेंगे, है ना। अब मेरे को पता है कि आप जो बच्चों के लिए जैसे मम्मा लोग करती हैं, लाइक वी हैव सीन ना, 4 रसगुल्ले, एक बच्चे ने 2 खा लिया, एक बच्चे ने 1 खा लिया, फिर मम्मी के लिए बचा ही नहीं। वी हैव सीन ऑल दिस ना। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज समझते हैं, ये नहीं है। दिस इज, यू आर गिविंग योर पोर्शन टू समवन एल्स। उसके लिए आपको ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए अपने लिए। यू डोंट हैव टू टेल एनीवन। किसी और को आप बता रहे हो तो देन यू आर नॉट ग्रेटफुल। किसी और को बताना मतलब क्या हुआ, यू आर शोइंग ऑफ। आप उसको क्या बोलते हैं, एहसान जताने वाली बात हो जाती है ना, वो हो जाते हैं। व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग कि यस आई एम दिस बिग हार्टेड, आई लव माई किड सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। वरना क्या होता है, आप रसगुल्ला थोड़ी छोड़ते, आप खुद ही खा लेते उसके लिए, है ना। तो यू हैव टू बी grateful for every little decision that you have taken, whether you have sacrificed, whether you have not sacrificed। क्यों ऐसा होता है कि आप सैलून जाते हो, घर में काम है, आप चले जाते हो, कितनी गिल्टी लगती है, लगता है कि नहीं लगता है, हाँ। तो वो सब चीज़ें नहीं सोचनी है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो, कि आपने अपने लिए टाइम निकाला, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपने जॉब में कुछ किया, नहीं किया, एवरी लिटिल डिसीजन दैट यू हैव टेकन, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, कितनी बार होता है ना, अपन कुछ मन की बात होती है, लगता है किसी को बताएंगे कोई क्या सोचेगा, उन सब चीज़ों के लिए भी आपको ग्रेटफुल होना है, फॉर एवरी लिटिल थिंग। बट वी हैव टू स्टार्ट ऑफ वेयर, वी हैव टू लुक इन द मिरर, लुक इन आवर आईज एंड से थैंक यू। यू हैव टू थिंक ऑफ थिंग्स। जो उन्होंने बोला ना, आपको चीज़ें बोलनी है 3, आप बोलोगे किस चीज़ के बारे में बोलें,
आप कोई भी चीज़ के बारे में बोल सकते हो, दैट यू आर सच अ वंडरफुल मदर, दैट यू आर सच अ वंडरफुल डॉटर, यू आर सच अ वंडरफुल चाइल्ड, आप इस बारे में बोलो। या आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलें, आप बोलो वाओ यू हैव सच अ नाइस स्माइल, ठीक है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, यू हैव सच अ क्लियर स्किन। आपकी जो भी चीज़ है आप उसके लिए बोलो, ठीक है। आपको लगता है आपके हेयर अच्छे हैं, जो आपको अच्छा लगता है उसके लिए बोलो, पहले तो वो बोलना शुरू करिए, फिर जो चीज़ आप में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो वो बोलना स्टार्ट करोगे, वो भी होएगा, ठीक है। पहले आपको जो खुद के लिए अच्छा लगता है वो बोलना, बिकॉज आप मिरर में झूठ नहीं बोल रहे हो। आप झूठ बोलोगे तो आपको ही पता है कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। तो ये मत बोलना कि आपके हेयर कम है बट यू से कि नहीं थैंक यू आई लव माई हेयर, बट अंदर अंदर आ रहा है नहीं आई वॉन्ट मोर हेयर। आप किसको झूठ बोल रहे हो, कोई नहीं सुन रहा है, और आप झूठ बोल रहे हो तो आपको पता ही है। ओके, सो व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल, ठीक है। फिर बाद में करेंगे कि हमको जो चाहिए वो बोलेंगे। पहले तो आपको यही बोलना है कि आप एक्चुअल में अपने बारे में क्या आपको अच्छा लगता है। उन्होंने बोला ना इफ़ यू आर रियली ब्रेव से 3 थिंग्स, वरना बोलेंगे 3 थिंग्स हम तो इतनी सारी बोल सकते हैं, मेरे में इतनी सारी अच्छी चीज़ें नहीं, जो आपको सच्ची में लगती है आपके बारे में अच्छी, आपको वो बोलनी है, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन अबाउट द प्रैक्टिस? आपका जॉब अच्छा है, आप इंटेलिजेंट हो, आपको लगता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, एनी क्वालिटी दैट यू लाइक अबाउट योर सेल्फ, एनी 3 थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट योर सेल्फ, लुक इन द मिरर एंड से दैट, ठीक है। आप खाना अच्छा बनाते हो, मे बी आप जॉब में बहुत अच्छे हो अपने, एनीथिंग, ओके, जो आपको अच्छा लगता है, थिंक ऑफ एवरीथिंग एंड देन से, ओके। सो कैन वी डू दिस? यस, ओके, थैंक यू। I have a question, Priya ji. हाँ, यस, तुम बंद करना. Just like while looking at the mirror, you said I love you. तो ऐसे Yeah. बोलना है या I love myself बोलना है? नहीं, आई लव यू, यू आर टॉकिंग टू द पर्सन इन द मिरर, ठीक है। आई लव माई सेल्फ नहीं बोलना है, ठीक है। वेन यू आर लुकिंग इन द Okay. मिरर यू आर सेइंग थैंक यू, आपको अपना नाम लेके बोलना है, ठीक है। थैंक यू प्रिया, थैंक यू मनोज, जो भी आप अपने आप को अपना नाम ही लेके अपन जनरली बोलते हैं, थैंक यू स्वीट हार्ट तो नहीं बोलते हैं आई थिंक, है ना। तो आप अपना नाम लेके मिरर में आपको बोलना है थैंक यू, ठीक है। और As सबसे if there is another person in the mirror, somebody else in the mirror. No, you are only there. You are seeing yourself first time as yourself. Okay? आपको वो एक पर्सन है. You are talking to the person in the mirror. ठीक है? Okay. आपको उससे बात करनी है. Okay? You are not saying, you are not to say I am so kind, I am so beautiful. नहीं. आपको बोलना है thank you प्रिया, you are wonderful. You are speaking to someone in the mirror. ठीक है? आपको उस पर्सन से बात करनी जिसको आपने कभी ध्यान नहीं दिया. उस पर्सन को आपने कभी ध्यान नहीं दिया. आपने अपना रिफ्लेक्शन देखा, आप कैसे दिख रहे हो आपने ये देखा, बट वो पर्सन जो है उससे आज आपको बात करनी है. हम लोग मिरर में जब देखते हैं तो क्या देखते हैं, कुछ फ्लॉज देखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ लग रही है, जस्ट जनरल अपने आप को देख लेते हैं, बट आपने कभी उसको इंसान नहीं समझा. टुडे यू हैव टू स्पीक टू दैट पर्सन. ओके, Okay, thank you. कल जब आप बोलोगे आपको बोलना थैंक यू मनोज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल फादर, या जो आपको लगता है अपने बारे में आपको वो बोलना है. ठीक है, Okay, okay, okay. Thank you. yeah, thank you. Anyone else has a question regarding this practice? No? Okay. अच्छा, अब पहले की बात, सॉरी, यदि ये प्रैक्टिस सुबह से रात तक में 5 बार करना है ना? नहीं नहीं, जितने बार आप निकले मिरर के सामने से उतने बार करना है. जितने बार आप मिरर में देख रहे हैं उतने बार आपको थैंक यू तो बोलना ही है. ठीक है, अपने मन में या जोर से जैसे भी लगे आपको थैंक यू तो बोलना ही, अपनी आंखों में आंखें डाल के. ये नहीं कि भागते भागते थैंक यू और चले गए, नहीं, आपको आंख में देख के थैंक यू बोलना है. दिन में जितनी बार भी, जब फर्स्ट टाइम जैसे आज सेशन के बाद अभी आप थोड़े से अगर 2 मिनट भी फ्री हो गए, आप मिरर में 2 मिनट नहीं लेना, आपको कम से कम 5 मिनट लेना है. आप मिरर में देखेंगे या तो बैठ के करेंगे. ठीक है, बैठ के आपको मिरर में देखना है, आंखों में आंखें डालना है. टेक सम टाइम, 10-15 सेकेंड्स, जितने देर आपका मिले, टेक आउट दैट टाइम एंड देन से थैंक यू. यू विल टेक योर नेम एंड से इट फॉर 5 टाइम्स. ये एक बार आपको करना ही करना है. ठीक है, और ये प्रैक्टिस ऐसी है, आप जितनी ज़्यादा करोगे उतना आपके लिए अच्छा है. ओके, हाँ, या ओके, थैंक यू मैम. हाँ, यस हिना. सोनिया जी, सॉरी हिना, सोनिया जी रेज योर हैंड फॉर सम टाइम. आपको कुछ पूछना है, बोलना है? हाँ, ये स्पेशली सिर्फ जो मिरर है उन्हीं के सामने आप आ रहे हो तभी बोलना है कि कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसमें आपको आपका रिफ्लेक्शन क्लियरली दिख रहा था, लाइक मेरा फ्रिज,
उसमें मुझे अपना क्लियर रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है और उसके सामने मैं सबसे ज्यादा आती जाती रहती हूँ। या फिर डोर्स होते हैं, ग्लास डोर्स जो है, उसमें भी आप आई कैन सी माई सेल्फ क्लियरली, तो वहां पे भी आप बोल सकते हो। हाँ, बट ये प्रैक्टिस आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो? हाँ, तो फर्स्ट टाइम पे तो आप मिरर ही करिए, ठीक है? उसके अलावा आपको अगर रिफ्लेक्शन दिख रहा है एंड यू फील कि यस इसमें हम ही है ये, देन यू कैन डू इट। इफ योर फ्रिज हैज अ मिरर लाइक शटर, तो आप उसको देख के कर सकते हो, बट अभी ग्लास को मत करिए, ठीक है? ऐसे तो देखिए टीवी में थोड़ा सा मेरे को अपना सिल्वर दिख रहा है, लाइक एक रिफ्लेक्शन टाइप का आ जाता है ना, उसको देख के नहीं बोलना आपको। यू हैव टू, इट शुड बी दैट इट इज यू, दैट इज कॉल्ड अ मिरर प्रैक्टिस, इट इज नॉट कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस। ओके, आपको मिरर में देख के करना है ये, ओके? जिसमें आपको मिरर जैसा रिफ्लेक्शन दिखाई दे, मिरर जैसा आप दिखाई दो, उसमें आपको ये करना है प्रैक्टिस। या दैट्स व्हाट। ओके, थैंक यू। हाँ, ये सीना जी आपको क्वेश्चन है? हाँ मैम उस दिन वो आवाज चली गई थी। हाँ सॉरी, बट मैम आपने जो बोला वो एकदम सही है, क्योंकि मैं बचपन से वो जॉब पर इतना फोकस कर रही थी, सो वो मेरा परसेप्शन था, और जो रिलेशनशिप है उसमें इतना मैं फोकस नहीं कर रही थी। तो आपने एकदम सही बोला, वो उस पर मैं इतना मतलब क्या पॉजिटिव थिंकिंग, सीक्रेट का जो इम्प्रेशन है वो उसमें नहीं डाल सकी। और आज आपने जो बोला लुक के बारे में, एक्चुअली आई एम वेरी अनसेटिस्फाइड विथ माई लुक, और वो सबसे मतलब जो वो वही काम कर गया, क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी कि वो मैं उससे डिजर्व नहीं करती हूँ। तो आज मैम ये क्या होता है, अगर आप पहले मिल गए होते तो कुछ अलग होता। देखिए बहुत मतलब ऐसा होता है कि आप पहले मिले होते। नहीं, ये सब नहीं सोचना है आपको। आपको क्या पता हम ये कितना सोचते थे। ये बुक मेरे को आई लॉस्ट माय डैड लास्ट ईयर एंड आई could not tell him I love him. He's my dad, okay? He was my dad, and I was a very, जैसे बताया ना, I'm very hyper strict disciplined kind of person, ठीक है? ऐसा लगता नहीं है, but I am like that. तो जो भी मेरे को कुछ गड़बड़ दिखता था ना, उसको तुरंत करेक्ट करने लगता था। पापू he used to tell me, तो मेरी मम्मा होती थी तो मेरे को सीधा कर देती ना, he used to tell me that, and I suddenly lost him. He did not fall sick or anything. Suddenly one night, I lost him. एंड जब मेरे को ये बुक मिली, उसके बाद फॉर मेनी मंथ्स आई वाज डाउन था, आई वाज वेरी अपसेट। जब मेरे को बुक मिली ये एंड आई स्टार्टेड डूइंग ग्रैटिट्यूड, तो मेरे को सबसे पहले यही लगा कि ये बुक मेरे को मेरे पापू के टाइम पे, आई कुड नॉट टेल हिम how much I loved him, how much, and that's why each day, when I look at his photograph, when I think about, when I write my blessings, I write to him, I do that. तो जब जो मिलना होता है ना, वो तभी होता है, we can't change that. तो जो भी lessons हमको सीखने थे, जो भी lessons हमको मिलने थे लाइफ में, वो उसी समय मिलके ही कुछ चेंज आता है। तो वी कैन नॉट से कि ये पहले क्यों नहीं। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, बिकॉज ये मेरे को इतना ज्यादा लगता है। ओके, दैट इज व्हाई आई टेल यू, पेरेंट्स आर सच अ ब्लेसिंग। आपको जितना मौका मिले, सी आई स्टिल हैव चैलेंजेस विद माय मॉम, बट अब हम और ज्यादा एफर्ट करते हैं कि आई लव हर, आई शो हर माय लव, आई स्पीक टू हर। ठीक है, उन्होंने डांटा, कोई बात नहीं, आई ट्राई एंड डू दैट। इट इज अ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, है ना, कॉन्स्टेंट चैलेंजेस ये चलते रहते हैं। बट if you are blessed with your parents around, कॉल करिए उनसे, बात करिए, बिकॉज फिर वो नहीं होगा। अभी जो ये प्रैक्टिस आपको मिल गई है ना, इतना अच्छे से आप उनसे कनेक्ट करके अपना ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, फीलिंग्स शो कर सकते हो। दे डोंट वांट अ थैंक यू, वो तो अपने लिए कर रहे हैं ना, बट आपको जो फीलिंग्स आ रही हैं, कन्वे टू देम, दैट इज सीरियसली अमेजिंग। ओके, इफ यू हैव योर पेरेंट्स अराउंड या एल्डर्स, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, टेल देम दिस इज योलो, राइट? यू ओनली लिव वंस, you don't know कल क्या होने वाला है ना, तो do that. Okay, so yes, thank you Ina ji. And आपको मिरर प्रैक्टिस उतनी जरूरी है, एंड ट्रस्ट मी, मेरी भी लाइफ मिरर के प्रैक्टिस के बाद बहुत चेंज हुई है, आपकी भी होगी। You have to look in the mirror and dance. You have to look in the mirror and dance. वो वाले जो I am too sexy या ये वाले जो भी सॉन्ग्स होते हैं ना इस टाइप के, sing that song loudly और मिरर में देख देख के डांस करिए। ये सब अमेजिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। हम लोग को लगता है क्या लोग मिरर में देख देख के डांस करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, अपने आप को वो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब। ओके, डू दैट। Just one thing to add on.
Yeah. अभी जो हिना जी कह रही थी ना, कभी लगता है कि बुक मिला होता तो अच्छा लगता, and the same thing, you know, I used to feel sometimes like यार ये बुक मिला होता, you know, things would have been little different than what it is. So अब that, you know, I was telling to my husband, he was saying, you know, every probably थोड़ा बहुत हम लोग दोनों ही ब्रह्म कुमारी का सुनते हैं वगैरह हैं, so like every soul has its own journey and own destination. हो सकता है तुम्हारा इस टाइम पे ही मिलना था, मेरा और थोड़ा, मतलब he was kind of little कि मेरा शायद थोड़ा और लेट मिलना है, but just be happy, at least you got it. There are a lot of people, so whenever it's just you think that this is the beginning of a new journey, so you can always walk to that path. क्योंकि कई बार लगता है ना, अरे उस टाइम पे मिला होता तो things would have been different, I could have, you know, done this way, I could have got this way, you know. But ठीक है, I think it's very important to be contented with what it is and move further. I mean, I am sure all of us has his or her challenges, but acceptance is important. It's एंड डू दिस प्रैक्टिस, ये बहुत बहुत अमेजिंग है। आप चाहे आप ऑलरेडी आप अपने आप को लव करते हो, फिर भी व्हेन यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर बीइंग यू, ये एक डिफरेंट टाइप का एक एक्सरसाइज है, ठीक है, डू दिस। अच्छा, एक और चीज, अब कल जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, जब नेक्स्ट सेशन में आप आओगे, इफ यू आर ओनली कमिंग, आपको एटलीस्ट 1-2 दिन लेके आने हैं कि उनकी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट है। ऐसा होता है ना, कोई डिस्काउंट लगता है, लाइक आई टेल यू, कोई डिस्काउंट होता है तो आप क्या करते हो, अपनी सिस्टर को बोलते हो, अपनी मम्मा को बोलते हो ना, हाँ हम तो बोलते हैं यार ले, अरे यहाँ पे सेल लगी तो 1 ले रहे हैं, तुम्हारे लिए भी ले ले, 2 ले करते हैं ना। हाँ, कोई अच्छी मिठाई भी होती है, आपने खाई, आपने दिवाली में इधर भी भेज दी, अपने लव्ड वंस को आप भेजते हो। तो दिस बुक इज सच, अगर आपको कोई भी मौका मिले, कोई भी कर रहा हो सेशन, टेल योर फैमिली फ्रेंड्स टू ज्वाइन इट, ठीक है, बिकॉज आपको नहीं लगता इससे आपको लाइफ में थोड़ी सी हैप्पीनेस आती है, एंड यू वांट दैट। ओके, तो प्लीज डू दैट। ओके, It's amazing, Priya. It's amazing. Yeah. थैंक यू, थैंक यू। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कोई भी कर रहा हो, अगर हमको जो जो मिलेगा आई विल शेयर। आई थिंक एक मिस हो गया, मेरे को पता नहीं था वो मैजिक बुक है, तो वो हम स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक उसमें 2-3 डेज का है, बट इट इज़ अर्ली मॉर्निंग 5 to 6, राजन सर ले रहे हैं वो, तो आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। एंड और भी कोई कर रहा होगा, आई विल शेयर इट जैसे मेरे को पता चलेगा, और हम जब कर रहे होंगे तो वो हम शेयर कर ही देंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज का प्रैक्टिस सबने कर लिया होगा, तो मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक का नहीं किया था, प्लीज कर लीजिए वो, डू इट। ओके, Yeah, because I missed yesterday's class, so I didn't do it. ओके ठीक है। प्रिया, कल एक बहुत अमेजिंग चीज हुई, you know, I was just walking on the road, so I saw a Bentley. Or you know, just my son was with me, बोला mama wow. So you know, automatically I generally, you know, say wow, you know, काश, तो मेरे मुंह से कल निकला thank you for my car. Wow. I don't know कैसे निकला प्रिया, I never, अपने आप ही निकल गया। मैं, तेरे मुंह से कैसे निकल रहा है, आज तू कैसे बोल रही है thank you for your car, अदरवाइज तू बोलती अरे हमर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पता नहीं, ऑटोमेटिकली आई से थैंक यू फॉर माय कार फॉर टेकिंग मी अराउंड। वंडरफुल, सी आ रहा है ना चेंजेस? यस, आ रहा है। दैट वाज अ ड्रास्टिक चेंज, नेवर इन माय लाइफ वुड हैव थैंक्ड माय कार, यू नो, ऑलवेज वांटेड। अच्छा, एक और चीज है, बिकॉज व्हाट यू गाइस से समटाइम्स, तो मेरे को क्लिक करता है। आप देखो आप क्या वर्ड्स यूज करते हो। आपने देखा, एक दिन हमने बहुत लंबा एडजेक्टिव्स का एक लिस्ट भेजा था। ड्रास्टिक क्या होता है, अच्छा होता है कि गंदा होता है? जनरली ड्रास्टिक मतलब मेजर ही होता है ना, शायद कुछ अच्छा। हाँ, मेजर चेंज, तब ठीक है, बट अदरवाइज जब अपन बात करते हैं कुछ भी, आप देखिए हम लोग नेगेटिव टाइप के एडजेक्टिव्स क्यों बोलते हैं? आई वाज मिसिंग हर सो बैडली, अरे ये सब नहीं बोलना चाहिए ना, अच्छी चीज, अच्छी। आप देखो जितना पॉजिटिव वर्ड्स आप बोलोगे उतना अच्छा। कभी हम लोग हमारे बच्चों को बदमाश बोलते, इतना एकदम गुंडा है ये, मत बोलिए ये सब, हाँ। एंड हाउ मेनी टाइम्स डू यू यूज द एफ वर्ड और द एस वर्ड, टेल मी। अपने लाइफ में, अपने कॉन्वर्सेशन में, आई ऑल्सो नेवर यूज इट, नेवर, आई नेवर यूज दिस वर्ड्स। वेरी गुड, बट आपको नहीं बोलना है, ठीक है, यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है। जितना आप, क्यों, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो आप बोल रहे हो वही अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट? आपको अच्छे वर्ड्स ही बोलने हैं, पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलने हैं। कभी मत बोलिए बेचारी क्या करेगी, बेचारी मतलब गुड वर्ड एकदम नहीं बोलना है, ठीक है। बेचारी तो बहुत बार निकल जाता है यार, नहीं निकालना है। अब राजकुमारी, प्रिंसेस, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, ये सब बोलिए, हाँ। बेचारी, पुअर थिंग भी बोलते हैं ना, पुअर थिंग, और कितना काम करेगी, है ना, नहीं बोलना है। अपने बच्चों के लिए बोलते हैं ज्यादातर ये सब, हम लोग फैमिली मेंबर्स के लिए बोलते हैं, नहीं बोलना एकदम भी। ट्राई एंड यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स,
Just I keep call what you're saying. Yeah. I call my son most of the time because he's so chubby and all. I keep on calling him Motallu, come here, Motallu, you're so cute, you're Moturam idhar aa. So I feel like now I should stop, नहीं तो और मोटा हो जाए. देखिए अपन प्यार से भी बोलते हैं लेकिन कितने बार बोल रहे हैं, ठीक है ना? प्यार से कोई तलाक भी बोल देता है तो तलाक तो हो ही जाता है ना, थोड़ी देखता है कि प्यार से बोल रहा है कि आई एम जस्ट, ऐसे ही होता है ना, ये पिक्चर में तो यही दिखाते हैं, ठीक है? 3 बार बोल दिया तो हो गया समझ. हाँ बस, और हम लोग कितने बार बोलते रहते हैं, ठीक है? तो जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग. जैसे ही आप अवेयर होने लगोगे, जैसे ही आप चूज करने लगोगे, ठीक है? देयर इज अ वंडरफुल कोट बाय जोसेफ मर्फी. जोसेफ मर्फी ना, I'll share it in the group. Joseph Murphy. Wonderful quote. Choose life, choose happiness, choose friend. ऐसे करके उनका बहुत फेमस कोट है. I'll share it. मेरे को तो पढ़ के बहुत अच्छा लगा. I'll share it and keep sharing positivity, keep spreading positivity and happiness. आप जितना gratitude and happy feel करोगे उतना ही spread कर पाएंगे, है ना? अगर हमें, कैसा लगा आपको वो वाला वीडियो? What are you practicing? You saw it? What do you practice? That little boy, Vanna. Yeah, Oh yeah. God, that's mind blowing. Mind Yeah, blowing. it's wonderful. Yes. I share it in each session. और जितने बार हम शेयर करते हैं ना उतने बार उसको देखते हैं. मेरे को इतना अच्छा लगता है. What, इतने अच्छे से बोलता है. What are you practicing? Are you practicing anger? कितने cutely was wonderful. ठीक है? So I think let's end the session and we'll catch up tomorrow. Do the mirror practice and जिसने नहीं देखा है please see that video. Okay? बहुत cute है वो बच्चा and वो जो बोल रहा है ना, it is amazing. ठीक है? So thank you everyone and see you all tomorrow. Keep doing the practices. Thank you. Bye. Bye. Priya, thank you very much. Thank you, Priyaji. Thank you